Hello, everyone, and welcome back. Today, we are going to talk about chapter number two, Contemporary Centers of Power. So, in the last chapter, we talked about how Cold War happened and what was the bipolar system, right? It is all. Before this chapter, there was also another chapter called US hegemony. Okay, and ideally, you are supposed to study that chapter to understand the context in which further more chapters are being made. But because of the rationalized syllabus, that chapter of US hegemony is not a part of our current curriculum. So, इसलिए I have decided that apart from the curriculum chapters, I will also be covering those so that I can give you a proper political understanding of why these chapters exist in the first place. And second of all, to actually connect the dots to the previous chapters. Okay? Because even though they have not really explained the entire context, but they have given certain what can you say? I mean, certain relations through which you can lead back, which will lead you back to US hegemony wala chapter ultimately. Okay. For example, the Cold War era that I explained on this channel, Cold War era is not really a part of your syllabus, and end of bipolarity was a part of your syllabus. But to explain end of bipolarity, I had to explain Cold War era. Thus, right now I'm covering this chapter, but I will make a separate video on US hegemony as well, so that it will be easier for you to understand the concept and deep dive into the actual politics of contemporary world. Okay. Now we move forward with today's chapter, which is revolving around contemporary centers of power. ठीक है? तो पुरानी टेक्स्ट बुक में जो ओल्ड टेक्स्ट बुक्स है उनमें इसका नाम है alternative centers of power. ठीक है? More or less the chapter is same thing only. Nothing has changed as such. So let's start with the chapter. Right. Now, what happens is कि bipolar structure हमने पढ़ लिया था उसके बाद we came to know कि bipolar structure के end होने के बाद we got a multipolar world. ठीक है, अब multipolar world में the idea was कि यूरोप के जो कंट्रीज हैं they are going to challenge यूएस की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर. ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाने लगे बने, जैसे कि ईयू आया, एशियन आया, एंड दीज वर ऑल द इंस्टीट्यूशंस जिनको बनाया गया था सो दैट पीसफुल कोऑपरेशन कैन बी डन इन रीजनल areas. ठीक है, now somewhere or the other I have already edited this PDF, therefore मैं इसी को use कर रही हूँ. So let's start with the first topic, that is your European Union. अच्छा, now considering the fact that I have already written on this PDF, in this PDF, so I will be explaining and you can still refer to those lines. क्योंकि मैं हमेशा लाइन बाय लाइन ही एक्सप्लेन करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि वी नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हो गई तो उसके बाद यूरोपियन लीडर्स जो थे, जो यूरोप के लीडर्स थे, उनके मन में एक सवाल आया कि यूरोप में अब पावर कौन होल्ड करेगा. ठीक है, ग्रैपल्ड का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द क्वेश्चन ऑफ हु विल बी द अल्टीमेट head or who will be actually holding the power. ठीक है, तो therefore the European leaders were grappled with the question of Europe, the power of the question of who will be holding the power in Europe. तो उनके पास दो ऑप्शंस थे. पहला ऑप्शन ये था कि वो यूरोप की जो पुरानी राइवलरीज थी उन्हीं के हिसाब से चले, या फिर एक और ऑप्शन था कि वो नए इंस्टीट्यूशंस बनाए और पीसफुल कोऑपरेशन के साथ काम करे. एंड ऑल्सो 1945 के बाद यूरोपियन स्टेट्स को अपने उस वर्ल्ड वॉर, जो दोनों वर्ल्ड वॉर उन्होंने लड़ी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी खास करके, उसके बाद जो इकोनॉमिक रूइंस हुए थे उसको भी कन्फ्रंट करना था, उसको भी ठीक करना था, क्योंकि उनकी भी कंट्री डिवास्टेट हो चुकी थी, उनकी भी कंट्री डिस्ट्रक्ट काफी हद तक हो गई थी. ठीक है, तो क्या होता है 1945 के बाद यूरोप का इंटीग्रेशन जो होता है इट इज मोर और लेस डन बाय दी कोल्ड वॉर. ठीक है, अमेरिका इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कराता है to the European countries and Europe economy under their plan which was called the Marshall Plan. ठीक है, तो यूएस ने, वी नो दैट यूएस ने एक कलेक्टिवली नई सिक्योरिटी सिस्टम बनाई थी जिसका नाम था नेटो, विच वॉज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो
अंडर द मार्शल प्लान एक OEEC वो बनाते हैं, वो लोग कोऑपरेशन बनाते हैं, विच इज कॉल्ड यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। ठीक है, तो इसका मेन काम ये था टू चैनल द एड टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। तो ये जो OEEC है, इट बिकेम अ फोरम जहाँ पे यूरोपियन स्टेट्स जो थे, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, दे बिगैन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज। इसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई जाती है, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, इसके ठीक एक साल बाद, एंड इट वाज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो OEEC का काम था ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काउंसिल ऑफ यूरोप COE का काम था 1949 में फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन। इसके बाद एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन 1957। इसमें इट अक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है, वी नो कि सोवियत यूनियन का जो ब्लॉक था वो कोलैप्स कर जाता है, और उसके बाद EU का फाउंडेशन बिल्ड होता है इन 1992, एंड दिस फाउंडेशन वाज लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। ठीक है, तो EU हैज मोर और लेस इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम वन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। ठीक है, तो EU has started to act more of a nation state right now। तो उन्होंने ऐसे ट्राई किया था कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, however the attempts have failed। Also the fact कि ऐसे करके ना आपको CUET क्वेश्चन पूछेगा या बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि which of the following are statements are true। ठीक है, and they'll give you a statement that European Union has a constitution of their own। Now you have to understand कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक अटेम्प्ट किया था, बट दैट अटेम्प्ट फेल्ड। बट उनके पास एक्चुअली में क्या है, उनके पास एक खुद का फ्लैग है, उनके पास एक खुद का एंथम है, उनके पास एक फाउंडिंग डेट है और एक करेंसी है। ठीक है, तो इट ऑल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अच्छा, कम टू दिस पर्टिकुलर इमेज ओवर हियर व्हिच इज यूरोपियन यूनियन फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी कि गोल्डन स्टार से एक सर्कल बनाया हुआ है, दैट सर्कल स्टैंड्स फॉर solidarity and harmony between the peoples of Europe। If you look it closer, तो peoples of Europe लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पीपल तो प्लूरल में होता, तो पीपल्स क्यों लिखा है? बिकॉज देयर आर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन यूरोप। यूरोप कोई एक टेरिटरी ऐसी नहीं है जहां पे सिर्फ एक तरह के लोग रहते हैं, वहां अलग अलग तरह के अलग अलग कंट्रीज से लोग रहते हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ठीक है, तो बिकॉज इट हैज 12 स्टार्स, एंड एज द 12 नंबर 12 इज ट्रेडिशनली सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। अगेन, why am I focusing on such minute details? Because the board or the COET has this tendency to trick you in certain aspects which you will definitely miss out अगर आप ऐसे ध्यान से नहीं पढ़ोगे। तो यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में जो 12 स्टार्स है, तो 12 स्टार्स रिप्रेजेंट व्हाट? सॉलिडारिटी एंड हार्मनी। एंड 12 स्टार्स ही क्यों है? बिकॉज इट इज द नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, वो कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। अच्छा, तो वील मूव फॉरवर्ड। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने कोऑपरेशन एक्सपैंड किया है बाय एक्वायरिंग दो स्टेट्स एज वेल जो पहले सोवियत यूनियन के ब्लॉक में थे। ठीक है, बट अगेन दिस प्रोसेस वाज नॉट रियली नेसेसरी और नॉट रियली इजी। नेसेसरी तो था बट नॉट रियली इजी। क्यों इजी नहीं था? क्योंकि इमेजिन इफ यू आर जस्ट गेटिंग फ्री फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट ब्लॉक, और फिर आपको जो पावर्स आपकी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए थी, आपको अचानक से वो पावर्स फिर से किसी EU के हाथ में देनी पड़ जाए, तो यू विल ऑब्वियसली नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट। नाउ EU हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की अकेले की GDP इज अबाउट $19.35 ट्रिलियन इन 2024। ठीक है, तो इमेजिन, एंड देन इट्स करेंसी इज यूरो। ठीक है, वी ऑल नो यूरो, but euro is so powerful that it can actually pose a threat to dominance of US dollar also। ठीक है, and now that EU has emerged being so powerful that अब वो चाइना की assertive trade disputes और जो US के साथ होती है उसके बीच में वो अपना ओपिनियन रख सकता है, और it can be allowed to be, it allows itself to be more assertive। ठीक है, and then of course उसका economic power जो है उसको it gives it an influence to influence over its closest neighbors including Asia and Africa। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स लिखा हुआ है एंड इट इज टॉकिंग अबाउट सम वीजा। ठीक है, राइट, तो
जस्ट अ सेकेंड. ओके. तो या आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स ओवर हियर व्हिच इज कॉल्ड शेंगेन वीजा के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है. तो शेंगेन वीजा एक्चुअली में था क्या? सी, शेंगेन वीजा वाज अ अग्रीमेंट जो उन्होंने 1985 में साइन की थी सारे यूरोपियन कंट्रीज में. और इसके तहत क्या है कि आपको सिर्फ एक यूरोपियन कंट्री का वीजा लेना है एंड दैट वीजा विल अलाउ यू एंट्री इन ऑलमोस्ट ऑल दी अदर यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है. जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी, जैसे अगर आप 29 दिन का जो उनका वीजा लगेगा, वो उसको 90 डेज तक किसी भी कंट्री में यूज कर, मतलब किसी भी यूरोपियन कंट्री में यूज कर सकते हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे. ठीक है. तो वी अंडरस्टैंड कि ईयू जो है इट हैज नाउ बीन फंक्शनिंग एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन दी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी ईयू का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है. अच्छा, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इट्स अ टाइमलाइन. ठीक है. इवन दो यू मे नॉट कंसिडर इट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बट लेट मी टेल यू इफ इट्स प्रिंटेड इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. इट इस इन्हीं बॉक्सेस में से एमसीक्यू बन सकते हैं आपके. एंड यू कैन नॉट रियली क्वेश्चन the government at this point though, but then yeah, you cannot really question CBSE कि उन्होंने ऐसे questions क्यों दिए randomly, because उनका काम आपको एनसीईआरटी से देना है एंड एनसीईआरटी में अगर वो चीज है तो वो पूछी जा सकती है इफ इट्स इन योर सिलेबस. If the chapter is in your syllabus, anything written in the NCERT based on this chapter can be asked. ठीक है. तो even if this CBSE does not ask, CUET will definitely ask. And of course, timeline जो है उसी के साथ याद करना, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना पड़ता है. सो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, we move forward. Now, EU has a political and diplomatic. चलो एक बार मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ, वैसे इट्स ओके. 1951 अप्रैल में क्या होता है कि देर आर 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज. कौन कौन सी? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, Belgium, Netherlands, and Luxembourg. ठीक है. तो they signed the Treaty of Paris establishing a European coal and steel community. Okay. 1975 मार्च 25 को क्या होता है? सॉरी 1957, my bad. मार्च 25 1957 को क्या होता है? These 6 countries जो थी हमारी, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड्स, they signed the treaties of Rome establishing the European Economic Community EEC. ठीक है. एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूरेटम. ओके. फिर क्या होता है? 1973 जनवरी में डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम जॉइन द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी. कौन कौन? डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम. सो अगेन, अब यहाँ पे हाउ विल दे ट्रिक यू? दे विल सजेस्ट कि इनमें से यू टेल अस विच ऑफ द कंट्रीज जॉइंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ड्यूरिंग 1973 जनवरी. ठीक है. तो ऐसे करके दे आर गोइंग टू ट्रिक यू, दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू. देयरफॉर आई एम प्रिपेयरिंग यू विद सच डेप्थ. अच्छा, 1979 जून में क्या होता है? यूरोपियन पार्लियामेंट के सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. फिर 1981 जनवरी में ग्रीस जॉइंस द ईईसी. 1985 जून में द शेंगन एग्रीमेंट जो हमने अभी बताया, मैं अभी डिस्कस किया हमने, दैट शेंगन एग्रीमेंट अबॉलिशेस बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द ईईसी मेंबर्स. तो अबॉलिशेस बॉर्डर कंट्रोल्स का क्या मतलब है कि अब आप किसी भी कंट्री में, मतलब जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, आपको सिर्फ एक वीजा लेना होगा और आप किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री में जा सकते हो फॉर अबाउट 29 डेज. ठीक है. एंड शेंगन इज अ टेरिटरी ऑफ लक्सेमबर्ग. तो लक्सेमबर्ग में ये ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी. ओके. अच्छा, नाउ 1986 Spain and Portugal then joined the EEC. 1990 October unification of Germany. February 7, 1992 Treaty of Maastricht was signed establishing the European Union. ठीक है. ओके. तो ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट. वेट, गॉड, this date here is very important. All right. तो इसके बाद 1993 यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज रीनेम्ड द यूरोपियन कम्युनिटी ईसी. 1995 जनवरी ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन जॉइन द ईयू.
उसके बाद 2002 जनवरी में क्या होता है? Euro, the new currency was introduced in 12 EU members. Okay, स्टार मार्क कर दो। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, बट देन मैं मोस्ट प्रिडिक्टेबल वालों पे बता रही हूँ, ठीक है ना। 2004 में 10 न्यू मेंबर्स, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लैटविया, लिथुएनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेनिया ज्वाइन द EU। 2007 January, Bulgaria and Romania join EU. Slovenia adopts the euro। ठीक है, ये जो यूरो करेंसी आई थी वो पहले 12 EU मेंबर्स अडॉप्ट की थी, और फिर 2007 जनवरी में स्लोवेनिया अडॉप्ट्स द यूरो। 2009 दिसंबर में क्या होता है? लिस्बन ट्रीटी आती है, ठीक है। 2012 में EU is awarded the Nobel Peace Prize। 2013 Croatia becomes the 28th member of EU। 2016 referendum in Britain, 51.9% of voters decided Britain exits from the EU। तो रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम इज एन ऑफिशियल वोट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द लिस्बन ट्रीटी, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी, विच केम इन व्हाट, लिस्बन ट्रीटी केम इन 2009 December। ओके, so what exactly is Lisbon Treaty? तो लिस्बन ट्रीटी इज बेसिकली अ लैंडमार्क इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ठीक है। तो इट हैड एक्चुअली रिफॉर्म्ड द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इट अमेंडेड द फाउंडेशनल मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो उन्होंने बनाई थी व्हाइल एस्टैब्लिशिंग EU, जो उन्होंने 7 फरवरी 1992 को बनाई थी। एंड देन ऑल्सो द रोम ट्रीटी टू मेक EU मोर डेमोक्रेटिक, एफिशिएंट एंड कोहेसिव इन मैनेजिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ऑल्सो इन्होंने अपना एक आर्टिकल 50 इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें इन्होंने एक लीगल प्रोसेस एंड कंडीशंस लिखे हुए थे, जहाँ पे एक मेंबर स्टेट जो है EU का, इट कैन वॉलंटरली विदड्रॉ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। अच्छा, सो वी आर देयरफॉर डन विद द टाइमलाइन एंड हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। EU also has a political and diplomatic influence, we already know that। ठीक है, जैसे EU की बात करें तो EU में एक मेंबर है विच इज फ्रांस, ठीक है। एंड फ्रांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर, क्योंकि वो UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। जब हम UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम UN और UN की बॉडीज को समझेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि फ्रांस इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। इसके इसी के साथ साथ EU में और भी नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं जो UNSC का ऑलरेडी पार्ट है, ठीक है। तो अब क्योंकि UNSC का पार्ट है, तो दिस enables EU टू इन्फ्लुएंस some US पॉलिसी, जैसे उसकी करंट जो US पोजिशन है ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, एंड देन इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशन rather than coercion and military force, ठीक है, विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब मिलिटरीली बात करें तो EU के जो कंबाइंड फोर्सेस है, कंबाइंड आर्म फोर्सेस है, द सेकंड लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द US। तो फ्रांस जो है उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स आर अप्रोक्सीमेटली अबाउट 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, एंड इट इज ऑल्सो the world's second most important source of space and communications technology। As a supranational organization, the EU is able to intervene in the economic, political, and social areas। अच्छा, okay, uh, just a minute। अच्छा, तो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? दैट एन इंटरनेशनल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो EU के जो मेंबर स्टेट्स हैं, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एक्चुअली यील्डिंग देयर इंडिविजुअल पावर टू द गवर्निंग अथॉरिटी। कौन है गवर्निंग अथॉरिटी? EU है यहाँ पे। देयरफॉर EU is a supranational organization, and it is able to intervene in the economic, political, and social areas of the individual powers। अच्छा, but in many areas the member states still have their own foreign relations and defense policies that are often at odds with each other, क्योंकि disagreements तो होनी है, right? जैसे रीड दिस थिंग,
ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर was America's partner in the Iraq invasion, and many of EU's newer members made up the US-led coalition of the willing. ठीक है, ओके, तो sorry, I had to take a call. Acha. Now we were talking about Tony Blair. तो Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, ठीक है. And then EU के जो members हैं, नए members जो है, बहुत सारे जो नए members हैं, they have made up the US led coalition की coalition of the willing, ठीक है. तो इसमें क्या है, coalition of the willing is basically a group of countries that supported the 2003, जो 2003 में इराक का जो इन्वेजन हुआ था, ठीक है. कोalition ऑफ द विलिंग इज देयरफॉर दोस कंट्रीज जिन्होंने इस इन्वेजन को सपोर्ट किया था, ठीक है. हाउएवर जो जर्मनी है एंड फ्रांस है, दे हैव ऑलवेज अपोज्ड दिस अमेरिकन पॉलिसी, ठीक है. देयर इज आल्सो अ डीप सीटेड यूरो स्केप्टिसिज्म, ठीक है. अब स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है, इन द सेंस ऑफ यूरो स्केप्टिसिज्म, ठीक है. सो एक सेकेंड, यस. नाउ यूरोस्केप्टिज्म एक्चुअली में क्या है, स्केप्टिसिज्म, it is basically a political position which is involving criticism of and opposition to the European Union and European integration, ठीक है. तो देखो, इवन दो हम अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि पीपल, जो लोग इंडिविजुअल मेंबर्स है यूरो के, दे आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ एवरी डिसीजन दैट ईयू कलेक्टिवली टेक्स, ठीक है. बट ऑल्सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोस्केप्टिसिज्म विच एग्जिस्ट. अब यूरोस्केप्टिसिज्म, यूरो स्केप सॉरी स्केप्टिसिज्म का आइडिया क्या कहता है, दिस सेज दैट क्रिटिसिज्म एंड ऑपोजिशन किसकी तरफ, टू द ईयू एंड जो यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ था उसका, ठीक है. तो बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट में भी मानते हैं कि ईयू, एक्चुअली में ईयू यूरोपियन इंटीग्रेशन वाज नॉट रियली नेसेसरी, एंड उनको ये पसंद नहीं आता, ठीक है. अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो स्केप्टिसिज्म की हम बात कर रहे हैं, यूरो स्केप्टिसिज्म, देयर आर टू बेसिकली आइडियोलॉजीज. एक तो हार्ड यूरो स्केप्टिसिज्म होती है व्हिच इज टोटल रिजेक्शन ऑफ ईयू, कि आप ईयू में मान ही क्यों रहे हो एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है. सो उनके हिसाब से मेंबर्स रियली वांट, जो इनको एक जो हार्ड वाले आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनके हिसाब से आप ईयू को कंप्लीटली रिजेक्ट करो और ब्लॉक को छोड़ दो, लीव द ब्लॉक, ठीक है. उनके हिसाब से ये मानना है, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन इंटीग्रेशन, इट इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ द नेशनल सॉवरेंटी. एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा, ब्रेक्सिट, जब ये हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, कम बैक टू दिस टाइमलाइन, 2016 में रेफरेंडम हुआ था और 51.9% वोटर्स डिसाइडेड दैट ब्रिटेन विल एग्जिट फ्रॉम द ईयू, ठीक है. तो ब्रेक्सिट जो है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ हार्ड यूरोस्केप्टिसिज्म, ठीक है. सॉफ्ट यूरोस्केप्टिसिज्म is support for the general concept of European alliance, but then it is still a severe criticism of current European policy, bureaucracy and centralization, ठीक है. तो वो इवन दो दे सपोर्ट कि हाँ ठीक है यूरोपियन अलायंस है वगैरह वगैरह, पर जो यूरोपियन अलायंस के साथ जो उनके ईयू की जो करंट पॉलिसीज है, जो ब्यूरोक्रेसी वो लोग चला रहे हैं, दैट इज नॉट रियली व्हाट दे अप्रिशिएट, ठीक है. अच्छा, तो ब्रेक्सिट जो है वो क्या था, इट वाज बेसिकली कि यूनाइटेड किंगडम ने वोट किया था टू लीव द ईयू वगैरह. ऑल राइट, नाउ वी मूव फॉरवर्ड. ऑल्सो गाइस, डू यू नो दैट यूरोजोन क्राइसिस हुए थे 2009 में, ठीक है. सो इवन दो इट्स लिटिल ऑफ टॉपिक, बट देन because we're discussing a very interesting chapter, therefore I'll explain eurozone crisis also. 2009 में ये क्राइसिस हुए थे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, 2009 के टाइम पे यूरो जोन क्राइसिस होता है, ठीक है. अब इस टाइम पे होता क्या एग्जैक्टली, ग्रीक में ना नई गवर्नमेंट आई होती है, ठीक है. एंड
क्या होता है कि ना वो बहुत हद तक बजट डेफिसिट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली, एक सेकंड, सॉरी, आई एम जस्ट सिक, सो आई wasn't feeling well, therefore I took a break. अच्छा, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द यूरोजोन क्राइसिस 2009 में जो क्राइसिस हुई थी, ठीक है। इवन दो वी आर गोइंग ऑफ टॉपिक, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब आप पॉलिटिकल साइंस को एक्चुअली में अच्छे से समझते हो, तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बुक से बाहर भी पढ़ लोगे ना, तो इट एक्चुअली बी इंटरेस्टिंग एंड फन टू अंडरस्टैंड। अच्छा, यूरोजोन क्राइसिस थी क्या? इट वाज बेसिकली अ फाइनेंशियल डिजास्टर, ठीक है। तो 2009 में ये होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मेजरली जो यूरोपियन कंट्रीज है, दे कुड नो लॉन्गर पे डेट, दे पे बैक देयर गवर्नमेंट्स डेट। तो एग्जैक्टली क्या होता है, वी नो कि 1999 में 12 कंट्रीज जो है वो मिलके वो अग्री करते हैं कि उनके कॉमन यूरोपियन करेंसी होगी विच विल बी कॉल्ड यूरो, ठीक है। तो इस कॉमन करेंसी के कॉन्सेप्ट से पहले क्या था कि जो रिचर कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी वगैरह हो गई, एंड जो पुअर कंट्रीज थी जैसे ग्रीक वगैरह, सॉरी ग्रीस, नॉट ग्रीक, ग्रीस, दे हैड देयर ओन मनी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जब उनके पास एक कॉमन करेंसी आ जाती है विच इज यूरो, तो बैंक जो है वो तो सबको सेम तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो जो पुअर कंट्रीज थी, दे कुड ऑल्सो बोरो मैसिव अमाउंट ऑफ मनी, पर एट सुपर चीपर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, ऐसा इसलिए था क्योंकि बैंक्स ने ये अज्यूम किया था कि जो रिचर कंट्रीज है दे विल ऑलवेज हैव बैक दी स्मॉलर कंट्रीज, ठीक है। तो इट इज लाइक, आप एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि आप एक ऐसे फ्रेंड को अपना हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड दे रहे हो जिसके जो ज्यादातर, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से कमाता नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ग्रीस, पोर्टुगल, आयरलैंड, जो सारी छोटी छोटी कंट्रीज थी, इन्होंने ना बहुत ज्यादा मैसिव बोरोइंग करनी स्टार्ट कर दी और बहुत रेकलेसली अमाउंट स्पेंड कर दिया। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ठीक है। तो बैंक्स फिर पैनिक हो गए एंड देन बैंक स्टॉप लेंडिंग द मनी। तो 2009 के एंड में आते आते ग्रीस ने थोड़ा एडमिट किया इस बात को कि उसने अपने फाइनेंसेस के बारे में झूठ बोला था, एंड इट वाज एक्चुअली ड्राउनिंग इन अ डेब्ट जो वो वापस नहीं चुका पा रहे थे, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को ये रियलाइज हो गया। तो इन्वेस्टर्स को जब ये रियलाइज हुआ, तो लाइक आयरलैंड, स्पेन एंड पोर्टुगल एंड इटली, ये सारे जो कंट्रीज थी, दे वर आल्सो इन क्वाइट ट्रबल, ठीक है। तो बैंक्स उनको भी उन सारी कंट्रीज को भी ये पैसा देने से मना कर रही थी, एंड देन दीज कंट्रीज फेस टोटल बैंकरप्सी। अच्छा, फिर क्या हुआ, देखो, द अल्टीमेट थिंग इज कि जब एक कंट्री एक्चुअली में ऐसे बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके पास सिर्फ एक सोल्यूशन बचता है, विच इज डेफिनेटली नॉट द राइट सोल्यूशन। बट आपको जो कोई और ऑप्शन नहीं दिखता, तो आप ये ऑप्शन पकड़ लेते हो। तो ऑप्शन क्या था कि आप ज्यादा पैसा प्रिंट करो जिससे आप अपने डेट्स को पे कर ऑफ कर पाओगे, और अपनी करेंसी की या तो अपनी करेंसी का डी वैल्यू करो, जिससे कि बाहर के फॉरेन बायर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे, सो दैट क्योंकि आपका जो कंपनी का जो कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो अब चीपर हो गया। बट क्योंकि दोनों कंट्री, ये जो सारी कंट्रीज थे ये सब यूरो यूज करते थे, तो ये अपना खुद का पैसा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना तो आप ज्यादा पैसा प्रिंट कर सकते हो, और ना पैसा अपनी करेंसी का वैल्यू गिरा सकते हो, सो दैट योर प्रोडक्ट्स बिकम चीपर, ठीक है। तो फिर क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सेंट्रल बैंक था जर्मनी में विच कुड एक्चुअली प्रिंट यूरोस, ठीक है। तो अब ये तो बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया था उन लोगों के लिए। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, इन सारी कंट्रीज को बचाने के लिए रिचर कंट्रीज जैसे कि जर्मनी एंड फ्रांस ये हीरो बन के आते हैं यहाँ पे, और आईएमएफ भी आती है, एंड देन दे गिव द ब्रोक नेशंस अ जायंट इमरजेंसी लोन, ठीक है। इस जायंट इमरजेंसी लोन को उन्होंने बेल आउट बोला हुआ है, ठीक है। तो बट अगेन, ऑफ कोर्स उन्होंने लोन दे तो दिया, बट दे केम विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस व्हिच आर कॉल्ड ऑस्टेरिटी, ठीक है। एंड द ब्रोक गवर्नमेंट्स वर एक्चुअली फोर्स्ड टू कट डाउन द पेंशन्स एंड लोअर वेजेस ऑफ वर्कर्स। देखो, अब ये गवर्नमेंट का लॉस है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया,
तो गवर्नमेंट ही कॉन्सिक्वेंसेस भरेगी। और गवर्नमेंट ने अगर अपनी जनता के साथ ऐसा किया व्हेन दे आर कटिंग द पेंशन एंड लोअरिंग द वेजेस फॉर वर्कर्स, तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट को दोबारा खड़ा नहीं होने देंगे। बट देन दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो उन्होंने फिर ये मान लिया, ये ऑस्टेरिटी मान ली, and they fired the government employees, they cut their pensions, lowered the wages for workers and raised the taxes drastically। ठीक है, तो ये जो बेल आउट था, ये जो इमरजेंसी लोन उनको दिया हुआ था, इट एक्चुअली सेव द यूरो करेंसी फ्रॉम करेंटली कंप्लीटली डिसअपियरिंग। पर ये जो इन्होंने इतनी हार्श स्पेंडिंग कट्स बनाए थे, इट एक्चुअली कॉस्ट अ लॉट ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्लोज बिजनेसेस एंड मासिव पब्लिक प्रोटेस्ट अक्रॉस यूरोप। ठीक है, अच्छा, तो दिस वाज द यूरोजोन क्राइसिस। Now we come back to our chapter. I got a little deviated, but it was an interesting thing to actually understand. ठीक है, तो हमने बात की यूरोस्केप्टिसिज्म के बारे में, हार्ड एंड सॉफ्ट यूरोस्केप्टिसिज्म आल्सो वी डिस्कस। तो इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अबाउट द यूज इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। ठीक है, तो हम जैसे मैंने अभी बताया था ना ब्रेक्जिट के बारे में, तो ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, he kept the UK out of European market. ठीक है, then Denmark and Sweden have resisted the Maastricht Treaty and the adoption of the EU common European currency. ठीक है, so these are the things that are limiting what? The ability of EU to act in matters of foreign relations and defense. Now we talk about ASEAN. तो एशियन की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एंड ड्यूरिंग दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एशिया का जो रीजन था इट एक्चुअली सफर्ड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि वहां पे रिपीटेडली कॉलोनलिज्म चल रहा था। ठीक है, बोथ जापानीज एंड द यूरोपियन पीपल। तो फिर क्या होता है, जब वॉर खत्म हो जाती है, तो एशिया स्टार्ट्स टू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, द ravages ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द प्रेशर टू अलाइन विद वन ऑफ द ग्रेट पावर और अनदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री के पास ये अल्टीमेट सोल्यूशन, मतलब एक प्रॉब्लम तो थी ना कि उन्हें कौन सी कंट्री को ज्वाइन करना है, राइट? मतलब कौन से ब्लॉक को ज्वाइन करना है। इवन दो वी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ नैम व्हिच वाज नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट नैम, गो एंड वॉच द very first video of Pol Science series, which is on Cold War era. You will get to know about NAM। ठीक है, अच्छा, नाउ तो क्या होता है कि वॉर के बाद उनके पास ये सारा काम था कि उनको पहले तो अपने प्रॉब्लम, नेशन बिल्डिंग के प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करना था। रैवेजेस ऑफ पॉवर्टी, रैवेजेस मतलब सिवियर डैमेज। ठीक है, रैवेज का मतलब है सिवियर डैमेज। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और पॉवर्टी से जो भी रैवेजेस था, एंड देन द प्रेशर टू अलाइन विद वन ग्रेट पावर, सारे उनके सामने प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो क्या होता है कि थर्ड वर्ल्ड यूनिटी एफर्ट्स ना अब एशियन कंट्रीज लगाती हैं, थर्ड वर्ल्ड यूनिटी लगाती है। ठीक है, तो सच एज द बांगदन कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट तो आपको उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। रही बात बांगदन कॉन्फ्रेंस की, सो लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, द रीजन आई एम गोइंग इन डेप्थ इज बिकॉज आपकी बुक बस टर्म्स मेंशन कर देती है एंड कॉन्टेक्स्ट मेंशन नहीं करती है। सो इट इज रिलेटिवली लाइक क्वाइट बोरिंग, वो बोरिंग हो जाता है अनलेस एंड अनटिल यू नो द एक्चुअल कॉन्फ्रेंस, द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो बैंगटन कॉन्फ्रेंस जो था, इट इज ऑल्सो नोन एज द एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस एंड इट वाज एन हिस्टोरिक मीटिंग दैट वाज हेल्ड फ्रॉम 18 to 24th of April 1955। ठीक है, तो बैंगटन इज इन इंडोनेशिया। तो उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस आते हैं, approximately 29 independent Asian and African nations, to promote the economic and cultural cooperation and to oppose the colonialism का आइडिया। ठीक है, तो ये जो थे वो नाम के ही लीडर्स थे और इसमें 10 प्रिंसिपल्स थे। वी वोंट रियली डिस्कस दो 10 प्रिंसिपल्स, बट या ठीक है। तो ये जो उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए थे थर्ड वर्ल्ड यूनिटी ने, जो ये बांगदंग कॉन्फ्रेंस की और जो नाम था, it was actually ineffective in establishing conventions for informal cooperation and interaction। इसके बाद क्या होता है, साउथ ईस्ट एशियन ऑल्टरनेटिव आता है बाय एस्टैब्लिशिंग दिस इंस्टीट्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, by establishing the Association of Southeast Asian Countries। ठीक है, ASEAN was established in 1967 by 5 countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, by signing the Bangkok Declaration। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट,
to accelerate the economic growth throughout and through that social progress and cultural development. जब एक बार इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी तो सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा. ठीक है. इसी के साथ इनका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर. ठीक है. तो ओवर दीज इयर्स क्या होता है, ब्रुनेई दारासुलम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, बर्मा, ठीक है, एंड ओ ओ ये ऊपर नहीं, हाँ, एंड कंबोडिया ज्वाइन द एशियन टेकिंग इट स्ट्रेंथ टू 10. ठीक है. तो फिर धीरे धीरे पहले जो 5 कंट्रीज थी अब उनको और कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया. वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार विच वाज एट दैट टाइम बर्मा, देन ब्रुनेई दारुसलाम एंड कंबोडिया. ठीक है. राइट. तो एक सेकेंड. ओके. तो राइट, इफ यू हैव हर्ड दिस टर्म पहली बार, ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक है, तो लेट मी टेल यू इट इज एक्चुअली अ कंट्री, रिच कंट्री. ठीक है. ऑयल रिच कंट्री है, मतलब रिच नहीं, मतलब ऑयल रिच कंट्री है. इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. ऑन कोस्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड. ठीक है. तो क्या है कि इट हैज इमेंस वेल्थ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड यहाँ पे ना एक इस्लामिक मोनार्की चलती है. ठीक है. अच्छा, दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ ब्रुनेई दारुसलाम. क्योंकि चिल्ड्रन हैव हर्ड दिस टर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैं थोड़ा बता दिया बैकग्राउंड. अब क्या होता है, ये जो कंट्रीज है ये ज्वाइन कर लेती है एशियन को, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 से अब 10 हो जाती है. ठीक है. ईयू की तरह, ईयू की मतलब जैसे ईयू था वैसा नहीं, बट एशियन में ना एज सच कोई डिजायर नहीं थी कि उनको एक सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, इंस्टीट्यूशन बनाना है. ठीक है. क्योंकि एशियन में जो कंट्रीज थी दे यूज्ड टू सेलिब्रेट समथिंग कॉल्ड एशियन वे. एशियन वे क्या है, यहाँ से 2 मार्कर हमेशा आता है, प्लीज अंडरस्टैंड. एशियन वे इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव. ठीक है. तो इट अल्टीमेटली रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेंटी. तो सुप्रा नेशनल जो है वो था ईयू, क्योंकि ईयू को डोमिनेट करना था. ठीक है. बट एशियन को ऐसा कुछ डोमिनेट नहीं करना था, क्योंकि इट वाज एन इनफॉर्मल कोऑपरेशनिस्ट सॉर्ट ऑफ नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था. ठीक है. राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेंटी, क्योंकि नेशनल सॉवरेंटी ईयू ने तो रिस्पेक्ट नहीं की, बट यहाँ पे इट इज मोर और लेस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. राइट. तो क्या होता है, एशिया जो है, क्योंकि एशिया में एशियन में बहुत सारी इकोनॉमीज थी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी. तो क्या होता है, इट ब्रॉडन्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स बियॉन्ड द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. तो क्या होता है, 2003 में एशियन जो है इट मूव्स अलोंग द पाथ्स ऑफ ईयू बाय एग्रीइंग टू एस्टैब्लिश एन एशियन कम्युनिटी कंप्राइजिंग ऑफ 3 पिलर्स. पहला आता है एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी. तो उन्होंने क्या किया, 2003 के टाइम पे उन्होंने 3 चीजें लेके आए. एक तो सिक्योरिटी के ऊपर एक कम्युनिटी बना दी, एक उन्होंने इकोनॉमिक पे कम्युनिटी बना दी, और तीसरा सोशियो कल्चरल पे उन्होंने एक कम्युनिटी बना दी. राइट. प्लीज अंडरस्टैंड, फ्लैग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फ्लैग के पिक्चर्स देके पूछ लेगा किसका फ्लैग है, पता ही नहीं होगा तो क्या आंसर करोगे. ठीक है. एशिया के फ्लैग्स, एशियन के फ्लैग्स में देखे, ईयू का फ्लैग क्या था, ईयू का फ्लैग वाज समवॉट लाइक दिस एंड इट हैड सर्कल में 12 स्टार्स, है ना. 12 स्टार्स में मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, बट या 12 स्टार्स. तो क्या था वो, अभी मैंने बताया था कि स्टार्स रिप्रेजेंटेड हार्मनी एंड सॉलिडारिटी. एंड देन ये जो 12 स्टार्स थे, 12 इज अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, कोऑपरेटिवनेस एंड यूनिटी. अच्छा, एशियन के लोगों पे देखते हैं तो देर आर 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस. ठीक है. पैडी इज राइस. इट रिप्रेजेंट्स 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी. तो ये जो सर्कल है इट सिंबलाइजेस व्हाट, द यूनिटी ऑफ एशियन. ठीक है. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड,
राइट। तो जो एशियन सिक्योरिटीज कम्युनिटी बनाई गई थी, इट वाज बेस्ड ऑन अ कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। ऑलराइट। तो अभी हमने डिस्कस किया ना कि तीन उन्होंने वो कम्युनिटीज बनाई थी बाय फॉलोइंग द ईयू का पाथ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है, हाँ, तो सिक्योरिटी कम्युनिटी है, इट वाज बेस्ड ऑन दिस कन्विक्शन, ठीक है, कि ये जो मतलब जो कोर पर्पस है एशियन सिक्योरिटी अलायंस का, इट इज बेसिकली टू प्रिवेंट बॉर्डर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल ब्लडी वॉर्स, ठीक है, राइट। अच्छा, तो जैसे क्योंकि आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट से क्या मतलब है मेरा, मतलब जो लॉन्ग स्टैंडिंग अनरिजॉल्व से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बिटवीन नेबरिंग कंट्री, जैसे आ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो एक्चुअली में वॉर हो रखी है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट unresolved arguments है between neighboring countries over who owns specific piece of land, island or sea borders, ठीक है। So these sort of disputes should not really escalate into armed confrontation, मतलब as such कोई ब्लडी वॉर के सिचुएशन में ना एस्केलेट होना चाहिए। दैट इज वाई दे क्रिएटेड दिस सिक्योरिटी कम्युनिटी। 2003 तक ASEAN had several agreements agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. ठीक है। फिर एक एशियन रीजनल फोरम आता है, established in 1994, and it is the organization that carries out the coordination of security and foreign policy. राइट। तो एशियन हमेशा से ही इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज एसोसिएशन था, ठीक है। तो एशियान एज अ रीजन, इट इज मच स्मॉलर इकोनॉमी कंपेयर टू US या EU या जापान, ठीक है। तो आ, लेकिन ना, ऐसा देखो तो इनकी इकोनॉमी काफी हद तक फास्टर रेट पे ग्रो कर रही है, ठीक है, क्योंकि उनका जो इन्फ्लुएंस है, इन टेरिटरीज का जो इन्फ्लुएंस है, वो सिर्फ एशियान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि बाहर भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी की अगर आप बात करो तो दे आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन दिस एशियन स्टेट्स एंड देन टू एड द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, ठीक है। हमने सिक्योरिटी की बात की, अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम क्या था, दैट दे आर able to influence both the region as well as beyond as well, ठीक है। तो वो उसके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एड कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो लाइकली टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट, ठीक है। तो एशियन हैज फोकस ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया FTA फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड US एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव फास्ट टू नेगोशिएट विद द FTAs विद एशियन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया था, 1994 में उन्होंने बनाया था रीजनल फोरम, which was to carry out coordination of security and foreign policy. इकोनॉमिक कम्युनिटी में उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने FTA बनाया, विच इज फ्री ट्रेड एरिया, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज लगा सके, ठीक है। अच्छा, एशियन इज रैपिडली ग्रोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि उनका जो ये विजन था 2020 का, इट्स विजन 2020 हैज डिवाइज्ड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि एशियन का जो पॉलिसी है, इट बिल्ड्स ऑन दी पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, ठीक है। सो इट हैज मीडिएटेड द एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, द ईस्ट टाइमर क्राइसिस, एंड मीट्स एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है। शुड वी डिस्कस द ईस्ट टाइमर क्राइसिस एंड इन मतलब डिटेल्स वाली शॉर्ट में डिस्कस करना चाहिए हमें, आई थिंक वी शुड, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ईस्ट टाइमर क्राइसिस। अच्छा, तो ईस्ट टाइमर क्राइसिस एक्चुअली में क्या थे, इट वॉज बेसिकली अ पीरियड ऑफ इंटेंस वायलेंस, ठीक है, 1999 में हुआ था, बाय ईस्ट टाइमर्स वोट टू ब्रेक अवे फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है। तो उन्होंने ये सेटलमेंट को ऐसे शांत कराया था, राइट। ईस्ट टाइमर इज बेसिकली कॉलोनी ऑफ पोर्टुगल, जो कॉलोनी थी पहले, एंड देन वो इंडोनेशिया का पार्ट थी, एंड देन वो इंडोनेशिया में वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो चाहते थे कि वो इंडोनेशिया से अलग हो जाए, ठीक है। बस यही चीज थी ना। मूविंग फॉरवर्ड विथ या करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ एशिया, ठीक है। तो अगर हम उसकी इकोनॉमिक रेलेवेंस की बात करें एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर टू ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी, जैसे इंडिया, चाइना,
तो इट मेक्स इट एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट रियली पे एडिक्वेट अटेंशन टू एशिया। बट अब के टाइम पे अगर देखें तो इंडिया हैज ट्राइड टू मेक अमेंड्स इन द सेंस कि उसको चेंज करना शुरू किया है। इट साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 3 एशियन मेंबर्स। कौन कौन? मलेशिया, सिंगापुर एंड व्हाट, थाईलैंड। मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के साथ उन्होंने बैठ के अग्रीमेंट साइन किया है। एशियन इंडिया एफटीए केम इनटू इफेक्ट इन 2010। ठीक है। एशियन स्ट्रेंथ however lies in its policies of interaction and consultation with member states, with dialogue partners and with other non-regional organization. ठीक है। And it is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns. Okay, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है। I'll be taking a break here. I mean, I'm going to pause this recording here because I'm sick. After that, I'll resume the recording and then we'll continue.